Hello my dear students, I hope you are all having good over there. Today in this lecture we will discuss about CV versus resume. The key points of this lecture based on first of all when you are applying for a job you need a CV or curriculum vitae or at somewhere prefer your resume. The question is, are they the same thing? If not, then what is the difference in between CV and resume? And in this lecture, we will further discuss key elements that need to considered for written any CV or resume. What is CV? CV is a Latin word, means curriculum vitae or course of life. A curriculum vitae is a written summary of a person's career, qualifications, and education. This term is commonly used in North American and British English. CV is essential academic summary used for applications for the role in academia, scientific research, and medical fields. What is resume? The word resume comes from the French word resumer, means to summarize. A document created and used by a person to present his background, skills, and accomplishments called resume. It can be used for a variety of reasons but mostly used to apply for new job. Sometimes इसको resume भी कहते हैं, कुछ जगहों पर इसको as a resume भी लिया जाता है, but particularly this is called resume. Characteristics of resume. A resume is a one-page summary of your work experience. Number two, a resume is a brief explanation about your skill. Number three, resume is target-oriented. This used for early career application. It is related with the background to the job you are applying for, and a resume is about one page or maximum 2 pages. Here, telling about resume. Resume एक summary होती है about your work experience. और ब्रीफली आपने उसमें एक्सप्लेन किया होता है अपनी स्किल के मुतालिक, और जिस जॉब को आपने टारगेट करना है उस जॉब को सामने रखकर आपने अपनी स्किल को एक्सप्लेन करना होता है. अर्ली एप्लीकेशन या जो अर्ली जॉबियंस होते हैं या जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं वो अमूमन रिज्यूम यूज़ करते हैं. बैकग्राउंड ऑफ द जॉब भी इसमें किसी हद तक होता है. अगर आपने किस अरसे के लिए कहीं जॉब किया तो आप उसका जिक्र भी करते हैं. और मैक्सिमम रिज्यूम जो है वो 1 और 2 पेजेस का होता है, इससे ज़्यादा का नहीं होता. अगर इससे ज़्यादा का होगा तो वो क्या कहलाएगा, फिर सीवी बन जाएगी. अब characteristics of CV. A CV is a longer and in-depth document. A CV is like an academic diary that includes all your experience, publications, and other details. CV can be longer according to your work experiences. The CV is used for job promotions and admissions in academia. The CV is a comprehensive overview that could be based on 3 to 10 pages. यहाँ बताया गया कि CV जिसको करिकुलम विटा भी कहते हैं ये लॉन्गर होता है और इन डेप्थ होता है. अमूमन CV वहाँ पर अप्लाई की जाती है या वहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर हमने डिटेल में अपने एक्सपीरियंस को शो करना होता है, और हमारी उसमें पब्लिकेशंस भी होती हैं, हमारा थ्रू आउट एकेडमिक कैरियर, हमारे एक्सपीरियंसेस, कहीं आपने अगर काम किया है तो उस काम का ड्यूरेशन, स्किल, एक्सपीरियंसेस, तमाम की तमाम जो डिटेल होती है आपकी लाइफ की टुवर्ड्स दैट स्पेसिफिक एकेडमिक जॉब, तो वहाँ हम CV यूज़ करते हैं. और CV जो है वो 3 to 10 और मोर देन 10 पेजेस की भी हो सकती है, 20, 30, 40, 50 डिपेंड ऑन योर एकेडमिक एक्सपीरियंसेस. जितने ज़्यादा आपका वर्क और एकेडमिक एक्सपीरियंस होगा उतने ही आपके CV के पेजेस की लेंथ बढ़ सकती है. Key elements considered for written any resume or CV. The difference between CV and resume lies in the length, layout and purpose of these documents. नंबर 1 क्या बताया है कि इसमें डिफरेंस बेसिकली कहाँ आता है, इसकी लेंथ में है, लेआउट और पर्पस. किस पर्पस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं. अगर आप किसी वर्क प्लेस पर अप्लाई कर रहे हो, इनिशियल लेवल पर अप्लाई कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप रिज्यूम यूज़ करेंगे और उसकी लेंथ भी 1 और 2 पेजेस की होगी. और अगर आप किसी एकेडेमिया में अप्लाई कर रहे हो, आपका पहले से बहुत ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस है, तो वहाँ पर आपको CV ड्रॉ करनी पड़ेगी. CVs have no length limit. Resume are typically 1 to 2 page long. Highlight your unique and impressive areas at initial points. यहाँ बताया गया है कि जो भी आपने CV या रिज्यूम लिखना है, आप कोशिश करें कि इनिशियल लेवल पर जो पहला पेज होता है, फर्स्ट पॉइंट्स जो हैं,
आप वो हाईलाइट करें जो कि इम्प्रेसिव हैं, जो कि वर्थ हैं, आपकी स्किल की वर्थ हैं, जो आपको बेहतर तरीके से प्रेजेंट करवा रहे हैं। हाई क्वालिफिकेशंस या हाई डिग्रीज या हाई परसेंटेज वाली जो चीज़ें हैं उनको आप इनिशियल लेवल पर पहले पॉइंट्स में शामिल करें। यूज एट्रैक्टिव एंड कैचिंग वर्ड्स फॉर एनी अचीवमेंट्स। आप जो भी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं अपनी सीवी को ड्रॉ करने में या अपने रिज्यूम को ड्रॉ करने में, उसमें आप कोशिश करें कि स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, स्ट्रॉन्ग एडवर्ब्स, बहुत ज़्यादा बेहतर वर्ड्स इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा डिटेल में मत लिखें, प्रिसाइज लिखें, लेकिन ऑथेंटिक और कैचिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करें। ट्राई टू रीचेक द ग्रामेटिकल सीक्वेंस और स्पेलिंग मिस्टेक्स। अगर आप एक बार ड्रॉ कर चुके हैं, कोशिश करें आप खुद से ड्रॉ करें, सीवी किसी से बनवाएं नहीं, रिज्यूम अगर ड्रॉ कर रहे हैं किसी से बनवाएं नहीं, खुद से करें। और अगर आप किसी की हेल्प लेते भी हैं तो कोशिश करें आप खुद उसके पास मौजूद रहें, क्योंकि जो स्किल आप बेहतर तरीके से उसमें बता सकेंगे वो कोई और आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो एक बार लिखने के बाद आप ट्राई टू चेक द ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं आप उनका सीक्वेंस ज़रूर चेक करें, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो लास्ट इंप्रेशन होता है। जिसने भी आपकी सीवी देखनी है उसने 5 से 7 मिनट या उससे भी कम वक्त लगाना है उस पर। इट्स डिपेंड, जितना भी वो टाइम ले, चाहे कम ले या ज़्यादा ले, लेकिन उसका जो इम्प्रेशन है आपकी सीवी का, फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो इम्प्रेसिव होना चाहिए। उसमें ऐसा ना हो कि फर्स्ट पेज पर ही आपने ग्रामेटिकल सीक्वेंस आपको नहीं आ रहा और आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स की भी हैं एक्सेट्रा। तो जब आप इन सब बातों का ख्याल रखेंगे तो डेफिनेटली आपका पूरा इंप्रेशन जो है वो अच्छा आ जाएगा, क्योंकि उस वक्त उन लोगों के सामने सिर्फ आपकी सीवी या रिज्यूम होता है, आप खुद नहीं होते हो। तो जितनी इंप्रेसिव आपकी सीवी और रिज्यूमे होगा उतना ही ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी को एक अच्छे तरीके से वो लोग ड्रॉ कर सकेंगे। देन बोथ हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस फॉर एनी जॉब एंड रिक्वायरमेंट। हर जगह अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ लोग सीवी ड्रॉ करवाते हैं, कुछ लोग रिज्यूम। तो अकॉर्डिंग टू दैट आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप you understand this video. See you in next lecture. Thanks for watching. I hope you like the video. Do share with others. For more informative videos, keep watching my channel Candlelight. Stay happy and be blessed. Take care. Allah Hafiz.